Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss operators in SQL. We will also see the use of operators, various operators. We will see the practical implementation of various operators in this video lecture. So first we are going to discuss what is operator. ऑपरेटर एक रिजर्व्ड वर्ड है या फिर कैरेक्टर है जो कि आप वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं, राइट? अब वेयर क्लॉज के साथ हम यूज क्यों करते हैं, क्या नीड है ऑपरेटर्स की? सच एज हमें कोई कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करना है, कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन उस केस में हम यूज करते हैं ऑपरेटर का, राइट? सो एन ऑपरेटर is a reserved word or a character used primarily in an SQL statement where's clause to perform operations such as comparison and arithmetic operation. ये ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस स्पेसिफाई करते हैं, या फिर जब हमें कंजंक्शंस के साथ यूज करना हो मल्टीपल कंडीशंस के लिए, तब भी हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, राइट? सो वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर बेसिकली थ्री मेन कैटेगरीज आर देयर. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड one is comparison operator, and third one is logical operator. In this video lecture we will see the practical implementation of all of the three, and the other one is operators that is used to negate conditions, but there are mainly three operators, that is arithmetic, comparison and logical operator. Now first one we are going to discuss, that is arithmetic operators. So there are various arithmetic operators. These operators are used to perform the mathematical operations. For example, first one is addition operation, second is subtraction operator, and multiplication, division, and modulus. We will see its use, how we can use, and what will be the result of these operators. So addition adds the value on either side of the operator, right? Let's say एडिशन ऑपरेटर के साथ आपके दो ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं, देन उस केस में आप चेक करेंगे कि रिजल्ट आपको किस तरह से मिलेगा. लेट्स से हमारे पास, हम एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी, एंड इफ यू यूज a plus b then it will give the result of 30, right? Because 10 plus 20 will be 30. Now subtraction gives the right hand operation from the लेफ्ट हैंड ऑपरेशन, इनका सब्ट्रैक्शन देता है, राइट? सो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट्स राइट हैंड ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑपरेंड. फॉर एग्जांपल a minus b, if we perform a minus b, because a is 10 and b is 20, it will give you minus 10. Similarly multiplication multiplies values on either side of the operator. दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करने का काम करता है, so a asterisk b will give 200, right? डिवीजन क्या करता है? डिवाइड्स करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय द राइट हैंड ऑपरेंड, राइट? सो राइट हैंड साइड का जो ऑपरेंड होगा वो डिवाइड करेगा लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड को. सो फॉर एग्जांपल b डिवाइडेड बाय a will give 2, because b is 20 and a is 10, so 20 by 10 will give 2. मॉडुलस ऑपरेटर का क्या काम होता है? फॉर एग्जांपल मॉडुलस ऑपरेटर आपको देता है दो ऑपरेंड्स के बीच का रिमाइंडर, राइट? आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो आपका एज अ रिजल्ट यूज होता है, राइट? फॉर एग्जांपल देखते हैं b परसेंटाइल a, b is 20 and a is 10. आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमेशा आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0, बिकॉज 20 is completely divided by the 10. So these are the basic arithmetic operators that are used in SQL, or we can use these in our SQL queries also. Next one operator is comparison operator that we are going to discuss. So these are all comparison operators. First one is equal operator. It checks if the value of two operand are equal or not, right? ये चेक करता है कि वैल्यू अगर दो ऑपरेंड्स की इक्वल है या नहीं है, और अगर वैल्यू इक्वल होती है देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, राइट? कंडीशन ट्रू हो जाती है. फॉर एग्जांपल a इक्वल्स b, अगर हम यहाँ पर चेक करें a is 20, a is 10, b is 20, so it will give you the result that it is not true, right? Because a equals b is not true here. This is not equal to. It checks if the value of two operands are equal or not. If the value is not equal, the condition becomes true. अगर वैल्यू आपकी इक्वल नहीं है तब कंडीशन ट्रू होती है. फॉर एग्जांपल a is not equal to b, a is 10, b is 20, so 10 is not equal to 20, so it is true, right? This is also the not equal operator. not equal को आप इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. It also checks the value of two operands, that they are equal or not. If the value is not equal, then condition becomes true, right? For example, आप इस तरह से दे सकते हैं. So here 10 is not equal to 20, so it is true.
this is greater than operator and this is less than operator, right? Is it also gives you the condition that is true or false. If in this case greater than के केस में क्या होता है, लेफ्ट ऑपरेंड अगर आपका राइट ऑपरेंड से बड़ा है then value is true, right? So हम चेक करें a greater than b, 10 is greater than 20 is not true, right? And a less than b इस केस में चेक करें 10 less than 20 है, right? So this is true. So some more comparison operators are there that we will discuss. Another one is greater than equals. It is used when you check the condition that is greater than and with greater than equal to will be all there. Equal to भी साथ होगा आपके, जैसे greater than equal to क्या करेगा, it checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of right operand. If yes, then condition becomes true. For example, a greater than equal to b, 10 is greater than equal to b is not true, so it will give you the result not true. This is less than equal to, it checks the value of left operand is less than or equal to the value of right operand. If yes, then the condition becomes true. And a is less than equal to b is true. अगर हम चेक करें 10 is less than equal to 20, तो equal तो नहीं है but less than है, so it will give you the result as true, right? It is not less than and it is not greater than, राइट? सो इसके भी रिजल्ट आपको ट्रू और फॉल्स मिलता है. आप कंपेयर करते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर आपका राइट हैंड साइड से लेस देन नहीं है उस केस में आपको ट्रू मिलेगा, और इस केस में इफ लेफ्ट हैंड ऑपरेंड आपका राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन नहीं है तो उस केस में आपको ट्रू मिलेगा, राइट? एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू. So these are all the comparison operator. Now we will discuss the third category, that is logical operator. So first one logical operator is all. तो स्टूडेंट्स ऑल ऑपरेटर हमारा यूज होता है जब कभी भी आप एक दूसरे वैल्यू सेट से अपनी वैल्यू को कंपेयर करते हैं, राइट? यानी कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यूज का सेट गिवन है, अब उस वैल्यूज के सेट से आप अपनी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं, तब आप यूज करते हैं ऑल ऑपरेटर का. मोस्टली ऑल ऑपरेटर आपका सब क्वेरीज के साथ यूज होता है, राइट? सो ऑल ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू ऑल वैल्यूज इन द अनदर वैल्यू सेट. Next is AND operator. AND operator allows the existence of multiple condition in an SQL statements where clause. जब कभी भी आप where clause के साथ AND use करते हैं तो AND use करने पर क्या होता है, आपकी multiple condition exist कर रही होती है, right? उस केस में आप जब आपकी multiple conditions given है कि आपको particular expression 1 भी चाहिए and expression 2 भी चाहिए, then उस केस में आप use करते हैं AND operator का. Not ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर रिवर्सेस द मीनिंग ऑफ द लॉजिकल ऑपरेटर विद व्हिच इट इज यूज्ड. जिसके साथ भी यूज होता है, जिस भी ऑपरेटर के साथ, उसका मीनिंग को रिवर्स कर देता है, राइट? नॉट ऑपरेटर. सो एग्जांपल हम यूज करते हैं नॉट एग्जिस्ट, नॉट बिटवीन, नॉट इन, राइट? इस तरह से आप किसी भी ऑपरेटर के साथ नॉट को यूज कर सकते हैं. एंड अगर आप किसी अदर ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपली भी नॉट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं टू निगेट द कंडीशन. सो दिस इज द निगेट ऑपरेटर, राइट? फोर्थ वन इज और ऑपरेटर जब आपको मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करना होता है तो कंबाइन करने के लिए हम और ऑपरेटर का यूज करते हैं. इट इज आल्सो यूज्ड विद वेयर क्लॉज. द और ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन एन एसक्यूएल स्टेटमेंट वेयर क्लॉज, राइट? एग्जिस्ट स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट ऑपरेटर हमारा यूज होता है जब कभी भी आप कुछ पर्टिकुलर रो की प्रेजेंस चेक करते हैं, राइट? कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पर. So it is used to search for the presence of a row in a specified table that meets a certain criteria. तो हमारा जो exist ऑपरेटर है ये भी आपका सब क्वेरीज के साथ यूज होता है, एंड दिस वन इज ऑल, ये भी आपका सब क्वेरी के साथ यूज कर सकते हैं हम इस ऑपरेटर को. Now there are some more operators that we will discuss. There is in operator. So in operator is used to compare a value of list of literals value that have been specified, right? तो इनके साथ हम ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज यूज करते हैं. अगर उन वैल्यूज यानी कि लिटरल वैल्यूज अगर वो सेटिस्फाई होती हैं जो आपने स्पेसिफाई की हैं, राइट? उन स्पेसिफाइड वैल्यूज के लिए यूज करते हैं हम इन ऑपरेटर, राइट? कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज से आपको चेक करना है कि क्या फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे ऐसे पर्सन्स के नेम चाहिए जो कि पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, राइट? मैंने 2 सिटी स्पेसिफाई कर दी, नोएडा एंड दिल्ली. सो यू विल राइट वेयर सिटी इक्वल टू सिटी इन ब्रैकेट में दिल्ली और नोएडा, राइट? सिटी इन दिल्ली एंड नोएडा आप इस तरह से देंगे. सो अभी हम क्वेरी का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, नो नीड टू
इसके बारे में आप अभी टेंशन मत लीजिए, हम अपने प्रैक्टिकल यूज में देखेंगे इसी वीडियो में कि आप इनका सिंटेक्स किस तरह से लिखेंगे. अनदर वन ऑपरेटर इज लाइक ऑपरेटर. इट इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यूज यूजिंग वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर. लाइक का यूज करते हैं हम तब जब आपको पर्टिकुलर, मैंने लेट्स से कंडीशन दी कि आपको उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है, राइट. सो यू विल गिव द कमांड. किस तरह से आप कमांड देंगे वो हम देखेंगे लाइक ऑपरेटर का यूज करके. अनदर इज एनी ऑपरेटर. एनी ऑपरेटर भी आपका सब क्वेरीज के साथ यूज होता है, राइट. जब कभी भी आप सब क्वेरी यूज करते हैं आप एनी यूज करते हैं. एनी ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर अ वैल्यू ऑफ एनी एप्लीकेबल वैल्यू इन द लिस्ट एज पर द कंडीशन. कंडीशन के बेस पर जो भी आपकी एप्लीकेबल वैल्यू है उन्हें कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. बिटवीन ऑपरेटर. बिटवीन ऑपरेटर आपका यूज करते हैं हम तब जब आपका एक पर्टिकुलर वैल्यू, आपको एक पर्टिकुलर रेंज दे दिया आपने कि एक मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की वैल्यूज का सेट चाहिए आपको. सो यू विल यूज बिटवीन in that case. So between operator is used to search the values that are within the set of values, right, given the maximum value and the minimum value, right. And last one operator is null, right. This operator is used to compare a value with a null value, right. Let's say आपके कॉलम में कोई null value है and आप चेक कर रहे हैं कोई particular value कि क्या वो null है, तो जहां पर null value है उनसे related आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, राइट. सो दीज ऑल बट द ऑपरेटर्स. अब स्टूडेंट्स हम यहाँ देखेंगे कि हमने ऑपरेटर्स पढ़े बट इनका एसक्यूएल में हम यूज किस तरह कर सकते हैं. सो we will see some queries where you will see the use of these operators. So consider the schema. हमने अपना स्कीमा अपने वीडियो लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्रिएट किया हुआ था. हमने एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट की, राइट. एम्प्लॉयज के एट्रीब्यूट थे ये सारे. एम्प्लॉय की आईडी था, नेम था, एज, एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी और सैलरी थी. एंड सिमिलरली हमने एक टेबल बनाई थी डिपार्टमेंट नाम की. सो कंसीडर दीज केसेस. अगर मैं कोई आपसे पूछता है या मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 4 है एंड जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स इस तरह की क्वेरीज के लिए आपको ऑपरेटर्स का यूज करना होता है, राइट. यू विल यूज इन दिस यू विल यूज लॉजिकल ऑपरेटर विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर, राइट, या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर कह सकते हैं, राइट. सो हम सारे ऑपरेटर्स का यहाँ यूज देखेंगे. लेट्स से मैं आपसे इस क्वेरी का रिजल्ट बोलती हूँ कि आपको इसके लिए क्वेरी लिखनी है कि आपको उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो कि डिपार्टमेंट नंबर 4 में है और जिनकी सैलरी 25 से ज्यादा है. सो हाउ यू कैन राइट दिस क्वेरी. यू विल यूज select, क्योंकि आपको सारी डिटेल चाहिए. यू विल राइट select asterisk from employee where DID, because डिपार्टमेंट आईडी आपकी क्या है, डिपार्टमेंट आईडी 4 है. और यू विल यूज एंड ऑपरेटर, राइट, बिकॉज वो दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए. सो यू विल राइट ए एंड डी एंड ऑपरेटर. एंड कंडीशन इज सैलरी ग्रेटर देन 25,000, right. This is how you can give this query using the this query and ऑपरेटर आपने यूज किया है और आपको इस फर्स्ट क्वेरी का डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, राइट. सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मैंने आपको बोला कि आपको एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए, एम्प्लॉय आईडी और नेम चाहिए जो कि डिपार्टमेंट नंबर 1 में है और जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है, राइट. सो यहाँ पर भी एंड यूज होगा आपका. एंड सिमिलरली आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हो. लेट्स से आपको थर्ड क्वेरी का रिजल्ट देखते हैं. सेकंड क्वेरी आप सिमिलर वे में दे सकते हैं. अभी हम और इनको प्रैक्टिकल यूज देखेंगे. सो पहले हम थर्ड क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स से आपको थर्ड क्वेरी में दिया है सिलेक्ट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु आर आइदर इन डिपार्टमेंट नंबर 1 और इन 5, राइट. या तो डिपार्टमेंट नंबर 1 में है या फिर 5 में है. सो यहाँ पर यू आर गिवन द केस ऑफ आइदर और. सो हमें यहाँ पर अगर हम सोचे तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें और ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, राइट. सो थर्ड क्वेरी का रिजल्ट आप किस तरह से दे सकते हैं. आपको सैलरी चाहिए उन एम्प्लॉयज की जो कि डिपार्टमेंट या तो 1 में है या डिपार्टमेंट 5 में है. सो यू विल राइट सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी आपकी सॉरी वेयर के बाद आपको कंडीशन दी है डिपार्टमेंट नंबर 1 है या डिपार्टमेंट नंबर 5 है. सो यू विल राइट DID इज इक्वल्स 1 और यू आर यूजिंग और ऑपरेटर है और DID equals 5, right. This is how you can specify the query using this or, right. So students इस तरह के रिजल्ट फैच करने के लिए हम यूज करते हैं वेरियस ऑपरेटर्स. ये जो हम क्वेरीज यहाँ पर देख रहे हैं. एंड सिमिलरली हम फोर्थ क्वेरीज को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हमसे सारी डिटेल्स पूछी हैं एम्प्लॉयज की जिनकी एज
40 से लेस देन नहीं है, राइट 40 से कम है जिनकी एज 40 से कम नहीं है, राइट नॉट लेस देन 40 दिया है। तो यहाँ पर हमें नॉट से क्लियर हो रहा है कि हमें नॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस जब आपको क्वेरीज का या जब आपको क्वेरीज के लिए ऑपरेटर्स का यूज करना होता है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन of all these operators that I have discussed here. So students, हमने last time अपने previous video lecture में जो schema create किया था organization का, I'm going to use that. Use organization, right? जिससे कि मेरा organization database use होगा, right? अब इसमें के अंदर tables मैंने आपको बताया था कि 2 tables create की हुई थी हमने यहाँ पर employee और department की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज देखते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको क्वेरी में बताया था कि मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 4 है और जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है, राइट। सो हाउ आई विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक, बिकॉज मुझे पूरी डिटेल चाहिए, सो आई एम राइटिंग सिलेक्ट एस्ट्रिक। कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं चाहिए, मुझे पूरी डिटेल चाहिए। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 4, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी 4 है, एंड यू आर स्पेसिफाइंग एंड ऑपरेटर, एंड सेकंड कंडीशन इज सैलरी greater than 25,000, right? By using this you have got the desired result, जहां पर डिपार्टमेंट आईडी आपकी 4 है और आपकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है। So this is the row that meets your particular condition. Now this is the use of and. Let's say अब मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जहां पर डिपार्टमेंट आईडी या तो 1 है या 5 है, राइट। सो आइदर और वाली केस हो जाएगा इस केस में। सो हियर वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ और ऑपरेटर। सो हाउ आई विल राइट क्वेरी यूजिंग दैट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID equals 1 and I'm using or DID equals to department ID equal to 5, right? So this is how we can see here कि जहाँ पर आपकी डिपार्टमेंट आईडी 1 है या फिर 5 है, उन सब का रिजल्ट आपका यहाँ पर तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। सो दिस इज द यूज ऑफ, दिस इज हाउ यू कैन यूज और क्वेरी। नाउ लेट्स से इफ आई आस्क यू टू, हमने अपनी क्वेरी देखी थी कि गेट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज हुज एज नॉट लेस देन 40, जिनकी एज 40 से कम नहीं है, राइट। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमें नॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सो we are going to see the use of not operator. So how we will write select asterisk from employee where, now I will write not where not age less than 40, राइट। तो यहाँ पर आपको जिनकी एज 40 से कम नहीं है, राइट। सो 40 के इक्वल्स हमने नहीं लगाया था, तो इसलिए 40 एज वाली पर्सन आपको मिल गई है। सो 42 एज तक आपको है, तो ये आपको 2 रोज आपको मिली है, आपकी डिजायर्ड रिजल्ट आपका ये है। सो यहाँ पर हम नॉट का यूज हमने देख लिया कि आप इस तरह से नॉट यूज करते हैं। नाउ अनदर ऑपरेटर हम ले लेते हैं, एक दूसरा ऑपरेटर दैट इज बिटवीन, राइट। तो बिटवीन आपको कब यूज करना होता है? बिटवीन gives you result true if the operand is within the range of comparison. अगर आपका जो ट्रू वो कब प्रोवाइड करेगा, डेटा कब प्रोवाइड करेगा, जब आपकी पर्टिकुलर रेंज सेटिस्फाई हो रही है, राइट, तब हम बिटवीन यूज करते हैं। सो हाउ आई विल राइट select asterisk from employee where एज। अब एज के साथ आप बिटवीन यूज कर रहे हैं, मैंने कहा लेट से मुझे 20 से 40 एज वाले पर्सन चाहिए, राइट। वेयर एज बिटवीन 20 एंड 40, राइट। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा 20 से 40 एज तक के सारे पर्सन आपको यहाँ पर शो हो गए हैं, राइट। होप दैट इज क्लियर। नाउ वी विल सी द यूज ऑफ इन ऑपरेटर। हमने अभी इन ऑपरेटर डिस्कस किया था, तो इन ऑपरेटर का सिंटेक्स आप किस तरह से देते हैं। लेट्स से मुझे आपके पास आपके एम्प्लॉय के नेम और एड्रेस चाहिए, राइट।
नेम और एड्रेस चाहिए जो कि नोएडा और मेरठ में रह रहे हैं उन एम्प्लॉयज का, राइट। सो हाउ आई विल राइट, सिलेक्ट एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस एंड एक और ले लेते हैं EID, राइट। हमने 3 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेलेक्ट ई नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय ID, वेयर एड्रेस इन ऑपरेटर का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इनके साथ आप देते हैं, इनके साथ आप कुछ पर्टिकुलर लिटरल्स प्रोवाइड कर देते हैं, राइट, यानी कि वो लिटरल्स, वो वैल्यूज जो आपको मैच करानी है। सो मैंने कहा नोएडा एंड मेरठ वाले पर्सन चाहिए, सो आई एम राइटिंग हियर नोएडा एंड मेरठ। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेरी में अभी मुझे यहाँ पर फ्रॉम किस टेबल से ले रहे हैं वो भी स्पेसिफाई करना है। सो हम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं ई नेम, एड्रेस, EID किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस इन नोएडा एंड मेरठ। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि आपको वो रिजल्ट मिल गया है, उन एम्प्लॉयज की डिटेल, उन एम्प्लॉयज का नेम, एड्रेस और एम्प्लॉय ID मिली है जो कि नोएडा या मेरठ में रहते हैं। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू द यूज ऑफ इन ऑपरेटर, हाउ यू कैन यूज द इन ऑपरेटर। नाउ कभी कभी हम इनको नॉट इन के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइट। अभी मैंने देखा था कि नोएडा और मेरठ में रहने वाले पर्सन्स की डिटेल चाहिए थी, अब मुझे वो पर्सन्स नहीं चाहिए जो कि नोएडा या मेरठ में रहते हैं। सो आई विल यूज नॉट इन ऑपरेटर, इनके साथ नॉट का यूज, राइट। हाउ आई कैन राइट, सिलेक्ट asterisk from employee where address I am writing not in, right। not in का यूज कर रहे हैं, not in कहाँ पर नहीं है वो एड्रेस, नोएडा एंड मेरठ। so I will specify the literals as नोएडा मेरठ। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एड्रेस में आपका सारे एड्रेस स्पेसिफाइड हैं, सारी डिटेल्स आ गई है, बट वो एड्रेस नहीं है जो नोएडा या मेरठ में, यानी कि उन पर्सन की डिटेल आपकी नहीं आई है जो नोएडा या मेरठ में है, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ नॉट इन। आप इस तरह से नॉट इन की क्वेरी दे सकते हैं। अनदर ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे दैट इज लाइक, राइट। लाइक ऑपरेटर का यूज मैंने आपको बताया था, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं आप, लेट से मुझे एड्रेस उन पर्सन का चाहिए, राइट, उन पर्सन की डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस M से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो हम देखते हैं कि कितने ऐसे एम्प्लॉयज की डिटेल्स है जिनका एड्रेस M से स्टार्ट हो रहा है। सो इस तरह की क्वेरी हम लाइक का यूज करके लिखते हैं, और मैं क्वेरी का यूज आपको बताती हूँ। सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस लाइक। अब आप इसके अंदर लिखते हैं, ये आपका वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर से के साथ यूज करते हैं, लाइक M, राइट, एंड यू विल यूज परसेंटाइल, राइट। तो ये क्वेरी आपको क्या देगी, उन एड्रेसेस, उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल देगी जिनका एड्रेस M से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस ये M से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मेरठ, मेरठ एंड मुरादाबाद। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल गई है, राइट। अब लेट से मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस T में एंड हो रहा है, राइट। तो ये तो था स्टार्टिंग के लिए, आप स्टार्टिंग के लिए इस तरह से स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपको यही क्वेरी देनी हो एंड के लिए, जिनका एड्रेस लेट से T से एंड हो रहा है, राइट, तो मैं किस तरह से यहाँ पर दूंगी, आप परसेंटाइल की पोजीशन चेंज कर देंगे एंड यू विल स्पेसिफाई द वर्ड लेटर, जो भी आपका कैरेक्टर है वो आप बाद में, लेट से T मुझे स्पेसिफाई करना है। तो उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनका एड्रेस T में एंड हो रहा है, राइट। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं एड्रेस T में एंड हो रहा है, मेरठ, दिस इज सूरत एंड मेरठ, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ लाइक ऑपरेटर। नाउ हम कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो कि हमारा सब क्वेरीज के साथ यूज होते हैं, उनका यूज भी देख लेते हैं। सब क्वेरीज के साथ मोस्टली हम यूज करते हैं ऑल, एनी, एग्जिस्ट, सम। ये जो ऑपरेटर्स हमने अभी अपनी थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे, इनका यूज हम करते हैं सब क्वेरीज के साथ। सो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल का यूज हम किस तरह से करते हैं विद द सब क्वेरी, राइट। लेट्स से आई एम राइटिंग सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर
salary greater than, I am using all operator, all, and then you will specify the subquery, right? इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सबक्वेरी ट्रू होती है तब ये all आपका रिजल्ट देता है, राइट? उस सबक्वेरी के रिजल्ट से कंपेयर करता है सारी वैल्यूज को, राइट? सो अब सबक्वेरी में मैंने दिया, लेट्स से select salary from employee where salary less than 42,000, राइट? अब अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें, आपने ऑल के साथ यूज किया है, अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? पहले आप इसको सबक्वेरी के रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर उन एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए जिनकी सैलरी 42,000 से लेस देन है, राइट? और उसके बाद 42 से लेस देन वाली सारी सैलरी आ जाएंगी आपके पास, देन उसके बाद उनसे ग्रेटर देन सारी वैल्यूज ये आपको सैलरी की स्पेसिफाई कर देगा. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज ऑल ऑपरेटर विद द सबक्वेरी, राइट? मोस्टली हम ऑल, एनी, एग्जिस्ट एंड सम इनका यूज करते हैं सब क्वेरीज के साथ. Now we will see the use of exist operator, right? तो exist operator का यूज भी हम इसी तरह से क्वेरीज के साथ, सब क्वेरीज के साथ करते हैं, राइट? तो हम किस तरह से लिखते हैं? लेट्स से मुझे क्वेरी लिखनी है यूजिंग exist. Select salary from employee where, now I will specify exist. Exist, then I will write subquery. Select age from employee where age equals 25, right? तो इस क्वेरी का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? अगर लेट से आपकी एज कोई 25 एज वाला पर्सन होगा, यानी कि अगर इस क्वेरी का रिजल्ट ट्रू होता है तब आपको सारी एम्प्लॉयज की उन सैलरी मिल जाएगी, राइट? सो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हमारी टेबल में 25 एज का एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा था, सो क्योंकि इसका इस क्वेरी का रिजल्ट ट्रू हुआ है तो आपकी सारी सैलरी आपको एम्प्लॉय टेबल की यहाँ पर स्पेसिफाई हो गई है. लेट्स से अगर मुझे यही क्वेरी देनी हो और मैं बोलती हूँ कि एज 60 से ज्यादा हो, राइट? तो ऐसा क्वेरी भी देख लेते हैं. लेट्स से इस जो आपकी सब क्वेरी है उसका रिजल्ट फॉल्स होता है, राइट? तो हम फॉल्स वाली क्वेरी देख लेते हैं. Where now I am writing age greater than 60. तो क्योंकि हमारे टेबल में कोई भी 60 से ज्यादा वाला पर्सन नहीं है तो इस वाली जो क्वेरी है, सब क्वेरी का रिजल्ट आपका फॉल्स मिलेगा. सो इट विल गिव यू द एम्प्टी सेट, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इस क्वेरी से, राइट? सिमिलरली आपका एक ऑपरेटर था जो हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकली, दैट वाज इज नल. तो इज नल ऑपरेटर का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं? इज नल में हम देखते हैं, लेट्स से कि मुझे ये चेक करना है कि क्या सैलरी में कोई इज नल वाली वैल्यू है, राइट? तो मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए जिनके लिए सैलरी की वैल्यू नहीं स्पेसिफाइड है, राइट? सो हाउ आई विल राइट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर सैलरी इज नल, राइट? क्योंकि हमने सारी वैल्यूज सैलरी की स्पेसिफाइड की हुई है, राइट? सैलरी में कोई भी वैल्यू नल नहीं है. दिस इज दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एम्प्टी सेट, राइट? और हम कुछ और ऑपरेटर्स हैं, एनी और सम. एनी और सम का यूज भी आप इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह आपने एग्जिस्ट एंड ऑल का यूज किया है, राइट? अपनी नीड के अकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. हमने यहाँ पर क्वेरीज, अपनी क्वेरीज में ऑपरेटर्स का यूज देखा किस तरह से कर सकते हैं. सिमिलर वे में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मोर एंड मोर क्वेरीज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.